یا بامبے سینٹر جائے گا, ٹرین پکڑے گا تو ہی ویرار پہنچے گا. وہ ویٹی چلا جائے اور کہے کہ میں نے ٹرین پکڑی تھی اور میں نے بھی سفر کیا ہے, تو بے معنی. صحیح سمت میں جانا, صحیح فیصلے کے ساتھ جانا, یہی دانش مندی ہے. ڈاکٹر نریندر جادو صاحب وہ آ چکے ہیں, اور آپ لوگ پلیز ان کے استقبال میں زوردار تالیاں بجائیے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کے گورننگ کاؤنسل کے ممبر فرید خان صاحب اسٹیج پر آ جائیں, اور باقی کی پروسیڈنگس وہ کیری فارورڈ کریں گے یہاں سے. فرید خان صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج. یہ باقی پروسیڈنگس فرید خان صاحب لیں گے. فرید خان صاحب پلیز if you could come forward and carry on the proceedings. Thank you so much. تھینک یو. میں اب بلا کسی تاخیر کے ہمارے آج کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ ڈاکٹر نریندر جادو صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں, اور انجمن اسلام کے صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں عامر ادریسی صاحب سے ANP کے جو صدر ہیں اور آج کی اس مجلس کے روح رواں, ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارے تیسرے مہمان خصوصی ڈاکٹر بشیر احمد صاحب تھوڑی ہی دیر میں تشریف لائیں گے, اور میں اب تلاوت کلام پاک کے لیے آواز دوں گا پروفیسر ذاکر الہی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس کیریئر فیس کا آغاز کریں. پروفیسر ذاکر الہی صاحب جو یہیں ثابت صدیق کالج آف انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر بشیر احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان کا استقبال ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. صدق اللہ العظیم. پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے, پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت سے شیطان مردود کے شر سے, اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تمام تعریفیں اس مالک کے دو جہاں کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے, رحمان و رحیم ہے, روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خود ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو وہ راستہ دکھا جس پر ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا, نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. پروفیسر صاحب, اب جو ہے ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ہمارے جو آج کے اس خصوصی تقریب کے کیریئر فیسٹ کی افتتاحی تقریب کے جو مہمان ہیں چیف گیسٹ صاحب ڈاکٹر نریندر جادو صاحب, ان کا جو ہے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار کرتا ہوں کہ ایک نسبتاً شارٹ نوٹس پر جو ہے وہ ہمارے یہاں پر دلی سے تشریف لائے. ڈاکٹر نریندر جادو صاحب کا زوردار استقبال کیجیے.
डॉक्टर साहब का तारुफ मैं फिर आगे आप लोगों को पहुंचाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन बता दूं कि डॉक्टर साहब जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के रुकन हैं और भारत सरकार की जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है उसके रुकन हैं, आरबीआई के जो है बहुत ही सीनियर तरीन पोस्ट पर रह चुके हैं, और डॉक्टर साहब का तारुफ पेश करने में लंबा चौड़ा वक्त लग सकता है। इतने ज़्यादा टैलेंटेड और काबिल है हमारे आज के जो है चीफ गेस्ट, और हमारे मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर बशीर अहमद साहब। डॉक्टर बशीर अहमद साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सर जो है वो इग्नो के जो है एक्स वाइस चांसलर रह चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है आपने जो अपना तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट के और बाद में टीचर्स के सभी लोगों के जो है वो सरबराह रह चुके हैं, और बहुत सारी तालीमी डिग्रियां और बहुत सारे इदारों से वाबस्ता हैं। और फिर हमारे आज के मेज़बान का मेहमान डॉक्टर ज़हीर काजी साहब की खिदमत में जो है अंजुमन इस्लाम के सदर, मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट के रुकन और बहुत सारी समाजी और तालीमी इदारों से जुड़े हुए डॉक्टर ज़हीर काजी साहब हमारे सारे मेहमानों की तरफ से और जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी लोगों की तरफ से जो है, और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP की तरफ से जो है मैं सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और अब जो है मैं गुजारिश करूँगा AMP के शानुल सैयद साहब हैं हॉल में, सैयद नजीब साहब से गुजारिश है कि अब जो एक गुलपोशी की जो रस्म होती है, पहले मेहमानों की गुलपोशी हो जाए और उसके बाद जो है प्रोग्राम शुरू हो। तो नजीब सैयद साहब जो है फूल पेश करें। सबसे पहले डॉक्टर बशीर अहमद साहब की खिदमत में फूल पेश किए जाएंगे। हाँ और हमारे AMP के आतिफ प्लीज डू कम। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब की खिदमत में जो है वो फूल पेश करें। ये सब हमारे AMP के बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, और AMP के सदर आमिर इदरीसी जो आज के इस प्रोग्राम के रुए रवा हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नरेंद्र जादव साहब की खिदमत में जो है गुलहाए खिदमत पेश करें। साबु सिद्दीक कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल और बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे साथ मुश्तरका तौर पर इस करियर फेज के निभाने वाले असलम शेख साहब से गुजारिश है, प्रिंसिपल साहब से, कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं और हमारे मेहमानों का जो है तो फूलों से इस्तकबाल करें। डॉक्टर बशीर अहमद साहब की खिदमत में डॉक्टर नरेंद्र जादव साहब की खिदमत में और सदर अंजुमन इस्लाम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब की खिदमत में। तो बच्चों, जो ख्वाब आपने देखा है, आपके वालिदैन ने देखा है, आपके मुस्तकबिल को लेकर और उसकी ताबीर ढूंढने आज आप यहाँ पर आए हैं। मैं तमाम प्रिंसिपल हजरात का दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अंजुमन इस्लाम, अंजुमन खैरुल इस्लाम और बहुत सारे तालीमी इदारे जिनका नाम लेना जो है तवालत हो जाएगी, हर एक इदारे का दिल की गहराई से शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने ना सिर्फ खुद यहाँ पर आए बल्कि कई दिन जो है हम लोगों के साथ आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, और कामयाबी ऐसी कि बच्चों की एक बड़ी तादाद के यहाँ पर हॉल खचाखच भरा हुआ है, नीचे मैदान खचाखच भरा हुआ है, हमको रोकना पड़ा नीचे बच्चों को। ये तमाम आप तमाम प्रिंसिपल हजरात के एक्टिव ताउन का
इनाम है कि आज हम ये चीज़ देख रहे हैं। जोरदार तालियां तमाम प्रिंसिपल हजरात और तमाम तलबा के लिए। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और अंजुमन इस्लाम ये दोनों के इश्तराक से ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं एएमपी के तारुफ के लिए सैयद नजीबुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो 2-3 साल में जो तंजीम बनी है और मकबूल हो गई पूरे हिंदुस्तान में, उस तंजीम का तारुफ पेश करें। सैयद नजीबुर रहमान हमारे जो है बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और गवर्निंग काउंसिल के रुकन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई, थैंक यू सो मच। विद द परमिशन ऑफ द गेस्ट मिस्टर नरेंद्र यादव साहब, प्रिंसिपल आगिर साहब और बशीर अहमद साहब, एंड our beloved president of AMP अमीर अजीज साहब, विद योर काइंड परमिशन, आप लोग परमिशन लेकर मैं इजाज़त लेकर मैं आगे प्रोसीडिंग शुरू करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जिस आपने कहा, फरीद भाई ने कहा मेरा नाम है सैयद नजीबुर रहमान। मेरा नाम कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी बर्थ सर्टिफिकेट कहती है कि मैं महाराष्ट्र हूँ, बॉर्न इन बॉम्बे, और मेरा पासपोर्ट कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन, बिलोंग टू द कंट्री ऑफ इंडिया, सील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो हुआ जो मेरी ज़ाहिरी तारुफ। मेरे पास और एक चीज़ है जिसका नाम है दिल, और मेरा वजूद वो कहता है कि मैं इंसान हूँ, और जो भी मैं करता हूँ, जो भी काम मैं करता हूँ, वो पूरी ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ, इंसानियत के लिए काम करता हूँ। और अगर शॉर्ट में देखा जाए तो यही एक पहचान है एक एएमपी मेंबर की, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के एक मेंबर की यही पहचान है। बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जात पात के हम लोग काम करते हैं, और इरादा सिर्फ यही होता है कि भाई हमारे किसी छोटे से खिदमत से, छोटी सी खिदमत से, छोटे से एफर्ट से किसी का फ़ायदा हो जाए। ये जो सफ़र जो था, जैसे फरीद भाई ने कहा कि 3 साल का सफ़र आसान नहीं था। हम लोग ने बस सबसे पहले शुरू की है तो भाई लोगों ने सबसे पहले तो कहा भाई ये है क्या चीज़। आज तक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स पूरी तरह से बोल भी नहीं पाते। नाम थोड़ा पेचीदा है लेकिन काम काफ़ी सीधा है। और यही बात रही हमारे जो एफर्ट्स की, जो मैं कहूँगा कि हम लोग ने शुरू में बहुत सारी एफर्ट्स डाली थी, बहुत सारी हम लोगों ने तकलीफ़ें उठाई थी, और बहुत सारी इस लेवल, इस मुकाम पर आने के लिए। और शुक्र है जो ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, जो आज ये प्रोग्राम का तीसरा इंस्टॉलमेंट है, जो तीसरी सीरीज़ का हिस्सा है ये। जब शुरू हुआ था प्रोग्राम विद अ विजन इन माइंड, चंद तंजीमों ने, चंद सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छा एक विजन प्रोग्राम रख के शुरू किया था और हम साथ में जुड़े थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वही प्रोग्राम काफ़ी एक्टिवली कंडक्ट कर रहे हैं। एएमपी मेंबर्स जो हम लोग कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जब हम कहते हैं कि भाई अगर आप सबकी खिदमत करते हैं तो आपने नाम सिर्फ एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ही क्यों रखा? वाई नॉट एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स, वाई नॉट एसोसिएशन ऑफ जनरल पीपल, सोशल प्रोफेशनल्स। लाइक हम लोग का कहना ये था कि देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि भाई दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल मुस्लिम्स, जो अलग अलग प्रोफेशन से हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं इसमें, कुछ इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं, काफ़ी सारे अलग अलग शुबे से हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। हम लोग ने आके ये कहा था कि भाई जब हम लोगों को एक राह मिली थी, हम लोग चाहते हैं कि वही प्रोफेशनल जो मालूमात है वही राह हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को दिया जाए। लोग कहते हैं कि भाई आपका काम फोकस सिर्फ मुस्लिम्स पर है। हम लोग कहते हैं बिल्कुल, हमारा काम फोकस मुस्लिम पर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करते हैं। तो कहते हैं भाई आप लोग सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही फोकस क्यों हो? लोगों से मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपका एक घर है, घर में माँ बाप है, माँ बाप के अगर 2-3 बच्चे हैं, उसमें से अगर एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में, और माँ बाप डेफिनेटली अगर होता है, बहुत सारे यहाँ पे वालिदैन हैं तो एग्री करेंगे भाई उस पर थोड़ा, टीचर्स भी हैं तो उस पर अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा वीक है पढ़ाई में, या कोई बच्चा थोड़ा वीक है पढ़ाई में आपके 3 बच्चों में, तो उस बच्चे पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आप। इसका ये मतलब नहीं कि आप बाकी के 2 बच्चों से आप प्यार नहीं करते। ठीक उसी तरह से आज
اگر دیکھا جائے معاشرے کے حساب سے ایجوکیشن اور اکانومی